Hello students, welcome to Control Systems lecture. We are going to continue with your time response analysis. In the previous lecture I have discussed about the brief concept of poles and zeros, and I told you about bounded signals and unbounded signals. So I gave you a brief on the behavior of signals also. Today we are going to talk about what is actually time response analysis and why is it needed, what is transient response, what is steady state response. These topics um, we are going to throw some light on it. So we actually started with the control systems journey, where I said that to design any control system, first of all you have to find out the requirements. Whenever you are given a problem that you have to do the controlling of this, so within certain constraints you have to first of all analyze it. Means you have to analyze what are going to be the design criteria. Then you do the mathematical modeling of it, and after mathematical modeling that you do, you derive the various equations. Then you find out the transfer function, and when you get the transfer function, now transfer function actually represents the system. Any system's characteristics, they are represented by your transfer function. So you got the system. Now you have to analyze that system, and how to do analysis and what analysis has to be done, that is the main thing. Like whenever you are making any system for certain cause, आप कोई कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसके लिए आप कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसको कैसे परफॉर्म करना है, दैट इज नोन टू यू ऑल. ओके, दैट इज द मेन question that is being given to a control systems engineer कि these are the requirements. आपका कंट्रोल सिस्टम ऐसे ऐसे चीज़ों से सब्जेक्टेड रहेगा. लाइक देयर कैन बी a control system when we talk about power system, for example, then we know that power system is complete system which can have failures in it. Okay, पावर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो ये बोल सकते हैं कि कभी भी आपका हो सकता है कि सपोज इन द जनरेटिंग साइड वी कैन से दैट देयर कैन बी dip in the voltage or dip in the frequency. Okay, there can be some fault in the transmission lines and the distribution and also there can be various faults. तो अगर ऐसे fault से subjected है आपका system, then whether it's able to perform even in those conditions or not, that is our main concern. ठीक है, जैसे अगर फॉल्ट होता है तो फॉल्ट होने पे वोल्टेज में कितना राइज है, कितना राइज आपका सिस्टम झेल सकता है, करंट में कितना राइज है, कितना डिप है, वो कितना हद तक आपका सिस्टम टॉलरेट कर सकता है. सो दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी they have to be investigated well before you are installing any system. Okay, so when we talk about time response analysis, actually it says that it's the behavior of any system with respect to time. जैसे ही आपने सिस्टम को इंस्टॉल किया है, तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, हाउ इज दिस सिस्टम बिहेविंग. When in time response analysis, we actually say that output response means you are giving certain input, and then however your system is behaving, that we call it as the output response. So this output response is mainly consisted of this forced response and then natural response. We actually divide this into two categories. One is your natural response, another is your forced response. नेचुरल रिस्पॉन्स को ही हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, या फिर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, यू वेन एवर यू हैव एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, you solve it using CF and PI, complementary function and particular integral. That defines that actually gives the solution for complete equation. सो सेम थिंग, जो वहाँ सी एफ होता है वही आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा, वही सॉरी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा, या फिर उसी को ही हम नेचुरल रिस्पॉन्स बोलते हैं. एंड जो वहाँ पी आई होता है वही हमारा फोर्स रिस्पॉन्स होता है, और वी कॉल इट एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. ओके,
सो सिस्टम्स बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, दैट इज द एनालिसिस, दैट इज द रिस्पॉन्स एनालिसिस दैट वी डू while studying this time response. And actually presence of energy storing elements, they affect the response of time. क्यों आपका वेरी करता है कोई भी सिस्टम में रिस्पॉन्स, वो होता है अगर आपके सिस्टम में कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उनकी वजह से जो सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हो सकते हैं. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी एनालाइज्ड प्रॉपरली, this has to be really taken care. Okay, so I said that output response can be categorized into two methods नहीं, दो आपके पोर्शंस हैं जिसका एडिशन आपका आउटपुट रिस्पॉन्स कहलाएगा टाइम रिस्पॉन्स में. सो फर्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिस्पॉन्स और द टाइम ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स. नाउ व्हाट इज दिस? Whenever you apply the input or whenever any system undergoes some sudden changes, then the response of the system until it reaches its final steady state condition is known as your transient or natural response. Suppose when I was taking the example of power system. So suppose there is some fault, कोई भी fault आ जाता है आपके system में, ठीक है. अगर फॉल्ट आता है तो सडनली क्या होगा कि आइदर करंट विल, कोई फेज का करंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ फॉल्ट, हो सकता है कोई करंट किसी फेज का बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाए, किसी का वोल्टेज बहुत एक्सीड कर जाए, किसी का करंट हो सकता है अचानक से ज़ीरो हो जाए, वोल्टेज किसी का डिप हो जाए. डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ फॉल्ट, नेचर ऑफ फॉल्ट, द वोल्टेज एंड करंट्स, these values will oscillate drastically, okay, until the system it restores itself, until and unless the system it maintains some after a while it will restore itself. उससे पहले क्या होगा, आपका सिस्टम में काफ़ी ऑसिलेशंस आते हैं. और इवन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मशीन. ओके, आप मोटर का एग्जांपल ले लें. when you switch off the when you switch on the fan, what is the डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द फैन? जैसे आप उसको ऑन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए आप ऑन कर रहे हैं, तो डज द फैन अटेन दैट स्पीड इंस्टेंटेनियसली? क्या फ़ैन जैसे आप ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वो फ़ैन का स्पीड इंस्टेंटेनियसली आपने जितने के लिए रेगुलेटर को एडजस्ट किया है उतने स्पीड पे वो इंस्टेंटेनियसली पहुंच जाता है? नो, इट डजंट हैपन. धीरे धीरे करके विद इन फ्यू सेकेंड्स, और अगर बहुत ही स्लो है तो फ्यू मिनट्स उसको लगते हैं फाइनली उस स्पीड में घूमने के लिए जितने के लिए आपने उसके रेगुलेटर को ऑन करके रखा है, उसको एडजस्ट करके रखा है. ओके, सो व्हाट इज दिस टाइम? इस ड्यूरेशन में वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज नोन एज योर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. जहाँ से आपने ऑन किया वहाँ से उसको फाइनल स्पीड तक पहुँचने के लिए आपका सिस्टम कैसे बिहेव किया, दैट विल बी नोन एज योर ट्रांजिएंट और नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. एंड देन व्हाट विल बी फोर्स्ड रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स? तो जब आपका फ़ैन फाइनली उस स्पीड पे घूमने लगा जितने के लिए आपने रेगुलेटर को एडजस्ट करके रखा था, तो उस टाइम पे आपका फ़ैन कैसे बिहेव कर रहा है, वेदर इट्स रोटेटिंग एट द सेम स्पीड दैट यू एट विच यू हैव केप्ट द रेगुलेटर, वो सेम स्पीड से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस टाइम पे उसका बिहेवियर कैसा है, वो आप एनालाइज करते हैं इन योर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और फोर्स्ड रिस्पॉन्स. सो दैट पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स विच इज मेंटेन्ड आफ्टर द ट्रांजिएंट्स डाई आउट is known as your steady state response. So basically the complete response can be the complete time response can be said to be the addition of transient and steady state response. Example we have taken, if suppose जो आउटपुट है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं a प्लस बी टू द पावर माइनस सी टी से, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि a आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू है और b टू द पावर माइनस सी टी जो है वो ट्रांजिएंट पार्ट है. Why I am saying this? I'll
take one example, and then you'll understand that why we are talking, why I've said that A is your steady state and B is your transient response, the transient part. I'm going to take the example of RL circuit, because RL circuit you already have, you have read it in your networks or circuit analysis. So we are going to take the same example. I'm going to take one RL circuit. Okay. In RL circuit, I'm taking the input voltage as V, and we are saying that after applying the voltage, current I flows through the circuit. Okay. Now, in order to solve this is one system, you can say this is one control system. ये आपका एक कंट्रोल सिस्टम है RL सर्किट. इसमें सर्टेन वोल्टेज करंट आपका सर्किट में फ्लो करना चाहिए. Okay, we are going to find out the transient part and the steady state part for this same circuit. इसमें से एनालाइज करेंगे कि क्या ट्रांजिएंट पार्ट है, क्या स्टेडी स्टेट पार्ट है. सो इफ आई हैव टू सॉल्व दिस, वी कैन जस्ट अप्लाई सिंपली केवीएल इक्वेशन. तो केवीएल इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी. ओके, एंड इफ आई टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो क्या आएगा, because in control systems this is actually a differential equation. So in control systems what we do, we convert any differential equation into its Laplace transform. उसका Laplace transform ले लेते हैं. तो उससे क्या होगा, हम ले रहे हैं यहाँ पे यूनिट स्टेप, सॉरी, अगर आप स्टेप रिस्पॉन्स लेते हैं, योर इनपुट स्टेप एक्चुअली, देन वी कैन राइट दिस एज V बाय एस. ये जो वोल्टेज है आप इसको V बाय एस लिख लेंगे. दिस विल बी इक्वल टू दिस, यहाँ पे ये आपका केवीएल इक्वेशन जो आपने लिखा है, दिस विल बिकम आर आई एस प्लस एल एस आई एस. ओके, इनिशियल करंट फॉर दिस इंडक्टर वी आर अज्यूमिंग इट टू बी 0. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन आ रही है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा आई एस का वैल्यू क्या है. सो आई एस विल बी एक्चुअली व्हाट, फ्रॉम हियर वी कैन राइट आई एस का वैल्यू आएगा आपका V बाय एस. ये है इस साइड, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में इनको ले जाएंगे आई एस कॉमन लेके, देन इट विल बिकम V बाय एस डिवाइडेड बाय R प्लस एल एस. ओके, या फिर इसको लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय R प्लस एल एस. ओके, नाउ in order, if we want to finally again write this IT, means I want to take this current in terms of time domain, तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या है, आपको इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है सो दैट यू कैन ईजिली टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट. what we can do over here, we can actually take L common from here. तो s प्लस समथिंग के अगर फॉर्म में आ जाएगा तो आप उसका e टू द पावर के टर्म्स में आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं. सो आई एम टेकिंग L कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो इनसाइड आई विल गेट s प्लस r बाय L. ओके, this we can get, and this we can write as V divided by L divided by S multiplied by S plus R by L. Now in order to take the Laplace transform, डिनोमिनेटर में आपके पास s के मल्टीपल्स हैं. ठीक है, इसको कैसे करते हैं, यू डू इट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जैसे आप सपोज यू आर टेकिंग s एज द डिनोमिनेटर, तो इसकी वैल्यू आप इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे ये जो भी है इसका वैल्यू जैसे आप इक्वेट कर देंगे 0 से, तो योर s विल बी इक्वल टू 0. डोंट टेक दिस s. ओके, इसको आप हाइड करके जो बाकी का पोर्शन है उसमें s की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दो. इसको हाइड करके, तो इसको हाइड कर दोगे तो s की वैल्यू 0, व्हेन यू सब्सटीट्यूट इट विल गेट v बाय एल डिवाइडेड बाय r बाय एल. ठीक है, ये वाली वैल्यू s की वैल्यू 0 करोगे तो यू विल गेट v बाय एल डिवाइडेड बाय r बाय एल. v बाय एल बाय r बाय एल कितना हो जाएगा, v बाय r. सो व्हेन यू राइट इट,
you have to take denominator as s, and for this it's actually second term is r by n. हाँ, denominator as s and numerator we are getting a की value आ रही है v by r. Then similarly for b, यहाँ पे आप इसको लेते हैं, आप you do it like this ना, a divided by s plus b divided by s plus r by l. Okay, then for this if you want to find a, then इसकी वैल्यू आप ज़ीरो करके जो आपका मेन इक्वेशन होता है वहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं इसको हटा करके, then whatever you get that is a, and similarly you find it for b also. So for b what we can say, we have to keep s, इसको ज़ीरो करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर बाय एल. ठीक है, ये माइनस आर बाय एल को आपको यहाँ पे हाइड करके इस वाली वैल्यू को आपको हाइड करना है, यू हैव टू हाइड दिस वैल्यू. And when you keep minus r by l substituted over here, then ll will get cancelled, so you will get minus v by r. Okay, so b will be actually minus, b will be minus v by r. Okay, so this is what we are getting, and then taking the inverse Laplace transform of it, it का inverse यहाँ पे this was is, so if I take the Laplace inverse transform of it I'll get it, और it हमारा क्या आएगा, this इसका Laplace inverse करोगे तो आ जाएगा v by r. ठीक है, एंड इसका लाप्लास इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा, दिस इज कांस्टेंट माइनस वी बाय आर. एस प्लस आर बाय एल का इन्वर्स लाप्लास करेंगे तो हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी. दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग. Okay, so your it is coming out to be v by r. From here we can take v by r as common, so in the inside we'll get 1 minus e to the power minus r by l into t. Fine. अब इसको आप ग्राफ में पुट करेंगे, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई. अब मैं बताती हूँ कि हम किसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोल रहे हैं और हम किसको स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बोल रहे हैं. सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट, टाइम रिस्पॉन्स इज said as is defined as the response of any system with respect to time. तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में IT को कैसे निकाल सकते हैं, IT का ग्राफ किस तरीके से होगा. So here you have this equation over here. So first of all at time t equal to 0, जब हम टाइम t equal to 0 की बात करते हैं तो उस केस में it की वैल्यू क्या होगी. So you just substitute t equal to 0, you will get v by r 1 minus e to the power minus r by l into 0. So this complete value will become equal to e to the power minus 0 क्या होता है, it's 1 only. ठीक है, तो ये 1 minus 1, सो एट t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0 में it की वैल्यू आपकी आ रही है 0. एट t इक्वल टू 0 वैल्यू इज 0. ओके, देन just rub this. Then at t equal to infinite, we say that system achieves steady state at t equal to infinite. तो t equal to infinite पे it की वैल्यू क्या है, when you substitute t equal to infinite over here, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे infinite substitute करेंगे तो e to the power minus infinity is nothing but this is equal to 0. So this if it becomes equal to 0, then at t equal to infinite it की वैल्यू हो जाएगी v by r. So we can say that at t equal to 0 it की वैल्यू थी 0. at t equal to infinite हम बात कर रहे हैं, infinite का मतलब है when it achieves steady state, तब इसकी वैल्यू आ रही है v by r. अब आप बीच में किसी भी पॉइंट पे और इसको बीच में t की वैल्यू कुछ रख करके देख सकते हैं, and then if you substitute the values you will find it that this graph more or less looks like this. This graph is what, how can I say that ये ऐसा ही जा रहा है, ये ऐसा ही होगा.
why can I say it like this? Because individually also we can see, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है, ये हमारे पास जो भी इक्वेशन आई है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि this is actually the subtraction of two parts. One part is v by r, another माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो v by r e to the power माइनस r by l into t, ये दो पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन है. सो व्हाट इज माय फर्स्ट पार्ट? इट्स अ कांस्टेंट पार्ट. ये मेरा कांस्टेंट पार्ट है जिसका एम्पलीट्यूड है v by r. ओके, दिस इज, ये हम बोल रहे हैं कि ये पहला पार्ट है. और दूसरा पार्ट हम बोल रहे हैं दिस इज v by r e to the power माइनस r by l into t. अब e to the power माइनस r by l into t मतलब इट्स एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म. जो इनिशियली मैग्नीट्यूड होगा t इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 होगी. तो एट t इक्वल टू ज़ीरो इसका वैल्यू कितना होगा? इनिशियली इट विल बी v by r ओनली. Initially it will be v by r, and then it follows exponentially decaying curve, and then finally it settles down to 0 at t equal to infinite. t equal to infinite मतलब कुछ देर बाद जब स्टेडी स्टेट मिल पहुंच जाएगा तब उसकी वैल्यू, उसको ही हम डिफाइन करते हैं t equal to infinite. Now this it is actually the subtraction of these two terms. So we have got first graph as this, second graph as exponentially decaying. इन दोनों को माइनस करने पे आपका जो भी ग्राफ आता है वो आपका ये ग्राफ है. ओके, सो this I can say this is ITS, this I can say as ITT. Okay, so ITS minus ITT gives me IT. ओके, t इक्वल टू ज़ीरो पे देख सकते हैं, t इक्वल टू ज़ीरो पे दोनों की वैल्यू v बाय आर है, इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ पे ज़ीरो आया था. t इक्वल टू इनफाइनाइट पे देख सकते हैं आई टी टी की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, बट आई टी एस की वैल्यू अभी भी v बाय आ रही है, इसलिए फाइनली जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आपका यहाँ पे v बाय आ रहा है. नाउ फ्रॉम हियर आई विल डिफाइन दैट व्हाट वी सेड फॉर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. वी सेड, हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में क्या कहा था? आफ्टर अप्लाइंग द इनपुट or whenever a system undergoes some certain changes, then the response of the system until it reaches its final steady state condition is known as your transient response. So from here we can see, हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो कहते हैं जहाँ से आपने इनपुट दिया, जिस इंस्टेंट से आपने इनपुट दिया वहाँ से फाइनल वैल्यू पहुँचने तक, फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू जहाँ पे जाके आपकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होने लग जाए, उस टाइम तक आपका जो वो जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ तक आपका जो आउटपुट का रिस्पॉन्स आएगा, दिस टाइम पीरियड this will be actually your transient response. So this will be t transient. यहाँ तक आपका सिस्टम ट्रांजिएंट बिहेवियर शो करेगा. एंड इंस्टेंट फ्रॉम विच, यहाँ से जहाँ पे हमने इसको ट्रांजिएंट्स खत्म होगा, आफ्टर दैट हाउएवर मीन्स जिस भी तरीके से आपका सिस्टम बिहेव करेगा, दिस पीरियड विल बी नोन एज योर स्टेडी स्टेट पीरियड, टी स्टेडी स्टेट. और इसके बाद से आपका जो सिस्टम है इसको कहेंगे दिस इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ योर सिस्टम. So I hope it must have been clear. And we can also see that transient part जो है, transient का मतलब ही है कि कुछ देर के लिए. Okay, so what we can see from here, we had two components, and the transient component actually this has to decay to zero. इसकी वैल्यू आपकी, ये ट्रांजिएंट जो है ये कुछ देर के लिए रहते हैं, आफ्टर दैट दे हैव टू डाई आउट, एंड देन फाइनली द स्टेडी स्टेट हैज़ टू बी अचीव्ड. ये स्टेडी स्टेट जो है ये अचीव होना ज़रूरी है. सो व्हेन यू हैड दिस सिस्टम, जो आपने वी हैड दिस आर एल सिस्टम, हमने जब आर एल नेटवर्क बनाया था तो हमने क्या किया था, इंडक्टर का बिहेवियर एक्चुअली में इसमें आया है. ये जो आपका सिस्टम में लैग आया है, जो करंट फाइनली रीच कर रहा है कुछ टाइम के बाद ये v बाय आर वैल्यू, तो ये क्यों आया है?
Now we can relate this from the concepts of network analysis also. In the network analysis what we have learned, हमने नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा रहता है कि एट टी इक्वल टू ज़ीरो प्लस, जैसे ही आपका कोई भी सिस्टम सडनली ऑन होता है और आप मतलब उसमें कोई आप स्विच ऑन होता है या फिर आप उसको स्विच ऑन करते हैं and you have energy storing elements in it, like you have inductor. तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होगी? इंडक्टर विल नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट थ्रू इट, उसमें से करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता है। अगर वो होगा तो सडनली चेंज हो, अगर हो गया तो इट विल बी एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है वो फुलफिल नहीं होगा, तो ये हो नहीं सकता है। सो एट टी इक्वल टू ज़ीरो यू से दैट योर इंडक्टर एक्चुअली इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है एट टी इक्वल टू जीरो। दिस वी आर एनालाइजिंग अगेन विथ फ्रॉम योर नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन वी डिफाइंड एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। एल जो है वो आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओके। नाउ फॉर जैसे हमने ये सिस्टम बनाया था, ये सिस्टम कोई भी आपका सर्किट रहता है उसमें इनहेरेंटली कुछ ना कुछ इंडक्टेंस रहता ही है। सो इफ योर सर्किट वाज डिजाइंड to have a current equal to V by R, ये सर्किट आपका ऐसा बिहेव करे कि इसमें से करंट V by R आए, but due to this inductor what will happen at t equal to 0 this will act like an open circuit, इसलिए करंट जो है वो आपका इनिशियली 0 आया, फिर धीरे 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 करके इंडक्टर के थ्रू करंट बिल्डअप करेगा एंड देन फाइनली एट t equal to infinite this is what we call as the steady state part, steady state time। तो एट स्टेडी स्टेट दिस विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, उस टाइम पे ये शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा एंड देन फाइनल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस सर्किट इट विल बी इक्वल टू वी बाय आर। सो जो ट्रांजिएंट आया उसका कॉज क्या था? उसका कॉज आपका ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट दैट दिस एल वाज द कॉज। सिमिलरली आप कैपेसिटिव सर्किट्स हैं वहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पे भी ट्रांजिएंट्स की बात करते हैं। इन मैकेनिकल सिस्टम्स ऑल्सो वी हैव एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, वी हैव दिस मास, वी हैव डैम्पर। तो ये अगर कहीं पे भी कोई भी सिस्टम में रहेंगे तो आपके सिस्टम में हमेशा ट्रांजिएंट्स आएंगे ही। सो वी हैव टू चेक कि ट्रांजिएंट कितने टाइम तक रहेगा, कितने टाइम तक है, उसको रिड्यूस करना है कि उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। ट्रांजिएंट में हो सकता है जैसे हमने अभी ये वाला इस तरीके का एग्जाम्पल लिया था। इन सम सर्किट्स वी सी दैट लाइक इन केस ऑफ पावर सिस्टम्स ऑल्सो वी सी कि आपका सिस्टम कई बार इस तरीके से बिहेव करता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सपोज या कुछ भी है यहाँ पे वोल्टेज है सपोज, सो हो सकता है कि सिस्टम इस तरीके से ऑसिलेट करे एंड देन फाइनली इट रीचेस द स्टेडी स्टेट। सो दीज ऑसिलेशंस जब तक यहाँ स्टेडी स्टेट नहीं रीच कर रहे हैं, इस पूरे टाइम पीरियड को हम बोलेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। एंड ये कितना शूट कर रहा है, वोल्टेज आपके फाइनल वैल्यू से कितना ओवर शूट किया, इतना ओवरशूट किया तो ये सिस्टम को कुछ हार्म तो नहीं पहुंचाएगा। अगर करंट है सपोज, वो भी हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको फाइनली स्टेडी स्टेट पे भी पहुंचने में, ये सारा एनालिसिस जो है ये बहुत क्रूशियल होता है कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए। दैट इज़ वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट दी टू हैव द नॉलेज ऑफ टाइम रिस्पॉन्स। Okay, so I hope this might have been clear to you all now। अब यहाँ पे वापस से आते हैं। I had written CT equal to A plus B to the power minus CT and I said that A is my steady state value and B to the power minus CT is my transient part। Why A is my steady state value? क्योंकि जब T equal to infinite आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आप देखोगे T की वैल्यू ये आपका CT है, एट टी इक्वल टू ज़ीरो सिस्टम में कुछ ट्रांजिएंट होंगे तो इट विल बी ए प्लस बी एंड एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट हम जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है ये आपकी ज़ीरो हो जाती है, इसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी ई टू द पावर माइनस सी टी, ओके।
अगर ये 0 हो जाएगी तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी, a आएगी. दैट्स वाई दिस a इज माई स्टेडी स्टेट वैल्यू एंड b टू पावर माइनस 8 इज माई ट्रांजिएंट पार्ट. Now I am going to do some qualitative time response analysis, and it will become very easy for you. Some very important concepts we discuss over here. Suppose we are having a control system with input as r by input हम ले रहे हैं rs is equal to 1 by s, and we are taking transfer function. जो आपका system का transfer function है वो आपका है s plus 1 divided by s plus 3. ये आपका transfer function है. ठीक है. नाउ इफ दिस इज आर एस एंड दिस इज जी एस, तो हमको मालूम है कि सी एस क्या होता है. सी एस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर एस इंटू जी एस, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द लाप्लास ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ऑफ इनपुट. ठीक है. इसका दिस डिवाइडेड बाय दिस इज जी एस, सो सी एस विल बी नथिंग बट इक्वल टू जी एस इंटू आर एस. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. आर एस इज इक्वल टू 1 बाय एस मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस 1 बाय एस प्लस 3. दिस विल गिव मी equal to CS. From here we can see that for this output, ये जो आपका output आ रहा है यहाँ पे we have this s plus 1 and denominator is having s multiplied by s plus 3. अब इसका अगर हम पोल ज़ीरो एनालिसिस करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम में we are having 1 0 at s is equal to -1. S is equal to -1 पे we are having 1 0, and then we are having two poles of this system. One is at S is equal to 0 and another is at S is equal to -3. Okay, so one pole is at S is equal to 0, another is at S is equal to -3. Now if I have to do the time domain, we have to find the time response of it. इसका अगर time response निकालते हैं तो फिर से वैसे ही करेंगे. What we can do, using partial fraction we can write this as a divided by s plus b divided by s plus 3. अब आपको a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय s है तो s की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करो. यहाँ पे इसको हाइड करके s की वैल्यू 0 लगा दो. तो s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/3. सो a विल बी इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाय s. प्लस फॉर b, इफ यू हैव टू फाइंड b की वैल्यू -3 सब्सटीट्यूट करो. ये वाला टर्म आप हाइड करके s की वैल्यू यहाँ पे डाल दो. तो इट विल बी -3 प्लस 1 दैट इज -2 डिवाइडेड बाय s that is -3. So it will become 2/3. So b will come out to be 2/3. So we get cs is equal to 1/3 divided by s plus 2/3 divided by s plus 3. Okay. If you take the Laplace inverse transform of it, you will get Ct is equal to 1/3 plus 2/3 e to the power minus 3t. Okay. Now just look, ये s क्या था. यहाँ पे हमारे पास ये s आया था. तो what was this s? ये s हमारा कहाँ से आया था? This was due to my input. हमने इनपुट दिया था आर एस इक्वल टू 1 बाय एस, उसकी वजह से हमारा ये एस आया था. एंड दिस इज इसका जब हम लाप्लास ले रहे हैं तो वी आर गेटिंग 1/3 ओवर हियर. सिमिलरली ये एस प्लस 3 जो था इसकी वजह से यहाँ पे हमारा ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है. अब अभी जैसे बताए थे माई ट्रांजिएंट पार्ट एंड स्टेडी स्टेट पार्ट, ये दोनों हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिएंट पार्ट है, कौन सा स्टेडी स्टेट पार्ट है. ट्रांजिएंट पार्ट वो होगा जो कि t इक्वल टू इनफाइनाइट पे वो ख़त्म हो जाए, ट्रांजिएंट्स डाई आउट हो जाने चाहिए. तो यहाँ देख सकते हैं एट t इक्वल टू इनफाइनाइट this portion 2/3 e to the power minus 3t, this will completely die out at t equal to infinite. So we can say this 1/3 is actually contributing as my forced response. उसी को steady state response बोलते हैं. तो this is the constant value, and ये forced response किसकी वजह से आया? This is due to my input. तो जो इनपुट आ रहा है उसके पोल की वजह से हमारा फोर्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है. एंड जो हमारा जो दूसरा पार्ट है जो ट्रांसफर फंक्शन का पोल है उसकी वजह से वी आर गेटिंग दिस सेकेंड पार्ट, दिस टाइम वेरिंग क्वांटिटी और द नेचुरल रिस्पॉन्स. So our natural response is due to the pole s is equal to -3. Okay, exponential value.
ये आपकी फाइनली डाई आउट हो जाएगी। एंड देन वी कैन ऑल्सो से कि आपके जो ज़ीरो है, ज़ीरो का क्या कंट्रीब्यूशन है, ज़ीरो का क्या कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, तो ज़ीरो का हम यही बोल सकते हैं कि दिस ज़ीरो इज़ एक्चुअली along with zero and pole, these two both are responsible for my एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड जो है वो S+1 S+3 ये दोनों की ही वजह से था। तो आपका जो ज़ीरो है वो एज सच आपके स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट पार्ट को तो नहीं चेंज करता है, इट डज नॉट इफेक्ट इट, बट इट अफेक्ट्स द एम्पलीट्यूड पार्ट। We can also see over here that we have e to the power -3t, ठीक है, e to the power -3t था, तो ये एक्सपोनेंशियली डीकेइंग रहेगा। व्हाट इफ अगर मेरा पोल S+3 नहीं होता, यहाँ पे पोल आपका S+5 होता, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा टर्म जो होता वो e to the power -5t हो जाता। एंड अगर ये e to the power -5t होता तो अगर इसको आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, आई हैव कंपेयर दीज टू थिंग्स। एक मैंने e to the power -3t वाला कर्व लिया है, ये जो रेड से डिनोट कर रहे हैं, एक e to the power -5t वाला लिया है। अगर e to the power 7t लेते तो वो और इस साइड चला जाता। फाइनली डी के दोनों ही सभी जीरो पे ही जा रहे हैं, बट यू कैन सी दैट वन दिस e to the power -5t is decaying much faster than e to the power -3t। अगर e to the power -7t 9t होता तो वो और ज़्यादा जल्दी डीके करता। तो क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे आपका पोल और फर्दर मूव करता है लेफ्ट में, ठीक है, उतना ही उस सिस्टम का डीके फास्ट होगा। नाउ दिस यू शुड रिमेंबर राइट नाउ, ये चीज़ बाद में जाके बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कि आपका सिस्टम में पोल की लोकेशन कहाँ है, वेदर इट्स नियर टू योर ओरिजिन और वेदर इट्स गोइंग फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर फार अवे जा रहा है तो उससे सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ेगा। यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि जितना फर्दर जाएगा उतना ही वो जो उसका डीके है वो उतना ही ज़्यादा जल्दी होगा। Okay, so we can conclude few things from here, that your inputs pole is responsible for your steady state या forced response। ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स जो होते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। एंड ट्रांसफर फंक्शन के जो ज़ीरो और पोल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द